A very good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss few examples based on multiplication law of probability. Before proceeding further, let me recall that law, what it states. There are two cases. One of the cases when the two events E1 and E2 are independent, and the another case is when they both are dependent. So today we will discuss examples based on independent events. So two events are said to be independent events if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of another event. As I have said, if you toss two coins at a time, then appearing of head on one tail will not affect the appearing of head or not appearing of head on another coin, isn't it? दो कॉइन्स को मैंने टॉस किया तो एक पर हेड आ जाना, दूसरे पर हेड आएगा नहीं आएगा, इसका डिसीजन उस इवेंट के हाथ में नहीं होता है. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो whenever two events are independent events, in that case multiplication law of probability is probability of A and B. दो इवेंट्स A and B ले लीजिए, E1 and E2. ये दोनों इवेंट्स होंगे साथ में, कंपाउंड इवेंट कहते हैं इसे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2, ये दोनों इवेंट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू E2 की प्रोबेबिलिटी. So this is the equation for independent events. If they are dependent events, dear students, दोनों events एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. In that case, that law becomes probability of E1 and E2. E1 and E2 साथ में होने की probability होगी probability of E1 into probability of E2 given E1. E1 हो जाएगा और उसकी probability जितनी भी है उससे multiply करेंगे probability of E2 given E1. So today we will focus examples based on independent events. The two events will be independent events and we want to find probability of E1 and E2. Both are happening. So what is there? What is the probability of that compound event? So I hope the objective of today's lecture is very clear to all of you. Now let's move on to interesting examples. So first example is the probability that machine A please write down the example, will be performing as usual function in 5 years. So first write down the question and then we can discuss over it. In 5 years time, is 1/4. So एक मशीन है A मशीन, 5 साल के बाद में भी वो जैसे पहले काम करती थी 5 साल के बाद में भी वैसे ही काम करते रहेगी. इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. 1/4 प्रोबेबिलिटी है यूजुअल फंक्शन करने की 5 साल के बाद में मशीन A की. नेक्स्ट पॉइंट इज while the probability that machine B, while the probability
that machine B will still be operating usefully at the end of the same period is 1/3. What next is given? Machine B's probability that it will still operate usefully at the end of the same period is 1/3. It means that there is another machine called machine B which will still function the way it functioned previously. After 5 years, its probability of usual function is just 1/3. मशीन ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 5 साल के बाद में यूजुअल फंक्शन जैसे करती थी वैसे करने की, बी जैसा काम करती थी ऐसा 5 साल के बाद में काम करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. दोनों मशीन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में दिया है. 5 साल के बाद में उनका फंक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है. नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज द गिवन डेटा, 1/4 ऑफ ए of usual function and 1/3 of B of usual function. Find the probability. Find the probability in the following cases. Find the probability in the following cases that in 5 years time first. So certain cases are given and we have to find probabilities pertaining to them. पहली केस है, both machines will be performing as usual function. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों भी मशीन्स जैसे यूजुअली काम करती थी वैसा काम करेगी 5 साल के बाद में, ये ढूंढना है. सेकेंड थिंग जो हमें ढूंढना है, नाइदर विल बी ऑपरेटिंग, नाइदर और नीदर विल बी ऑपरेटिंग, दोनों भी नहीं चलेगी, दोनों भी चलने की कंडीशन में नहीं रहेगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. तीसरा जो हमें ढूंढना है वो है, only machine B will be operating. Now my question to you is, only machine B will be operating, इस सेंटेंस को आप कैसे लेते हैं? क्या लगता है आपको? only machine B will be operating, what does it mean? Anyone? Only machine B will be operating का क्या मीनिंग है? Am I audible, dear students? Hello, am I audible? Only machine B will be operating का क्या अर्थ है? ओके, मेरी आवाज तो आ रही है. Only machine B will be operating. Anyone? उसका अर्थ क्या है? हेलो, not include in machine A. हाँ, not include in machine A. Very good, पूर्णिमा. केवल B काम करेगी, A काम नहीं करेगी. That is the meaning. अच्छा, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, ओनली मशीन B विल बी ऑपरेटिंग एंड मशीन B विल बी ऑपरेटिंग, दोनों में फर्क है. ओनली मशीन B विल बी ऑपरेटिंग एंड मशीन B विल बी ऑपरेटिंग, दोनों सेंटेंस में फर्क है क्या इस कॉन्टेक्स्ट में? क्या लगता है?
यस है, क्या फर्क है? ओनली मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग एंड सेकेंड इज मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग। तो ये जो बारीकियां है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पर क्या अपेक्षित है, अगर वही आपने समझ लिया तभी बाकी आगे की प्रोसेस आप ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो वहीं पे गलती हो जाएगी। ए नॉट वर्किंग, यस यस यस। ओनली मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग मतलब बी काम कर रही है, ए काम नहीं कर रही है। एंड मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग मतलब सिर्फ हम मशीन बी के बारे में बोल रहे हैं कि मशीन बी काम कर रही है, काम करने की पोजीशन में है। तो ये डिफरेंस है। मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग मतलब हम सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, बी का यूजुअल फंक्शन करना, और ओनली लिख देते हैं मतलब केवल बी काम कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है। These two are different statements and accordingly you have to find the probabilities. Next is at least one of the machines will be operating. आप इसको कैसे कंसीव करते हैं? At least one of the machines will be operating. याचा काय अर्थ घेता तुम्ही? याचा काय अर्थ घेणार आहे? कारण आपण त्याला काय समजतो ते बरोबर आहे का त्याच्यावरच अवलंबून आहे सगळं. ऍटलिस्ट वन ऑफ द मशीन्स विल बी ऑपरेटिंग. कमीत कमी एक मशीननी तरी काम करण्याच्या अवस्थेत असावं. कम से कम एक मशीन तो भी काम करनी चाहिए. अब कम से कम एक मशीन मतलब या तो केवल ए भी काम करे तो चलेगा, या बी भी काम करे तो चलेगा, या दोनों भी फंक्शन करती है तो भी चलेगा. तो जनरली एटलीस्ट वन मशीन विल बी ऑपरेटिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है? वन माइनस नॉट वर्किंग. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. कम से कम एक काम करना इज इक्विवेलेंट टू वन माइनस नॉट वर्किंग. काम ही नहीं कर रही, और उसका नेगेशन क्या रहेगा? कम से कम एक काम करना. पॉइंट टू बी नोटेड. विथ दिस let us proceed for the solution one by one. Question clear है? Shall I proceed further? पहले जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं कि मशीन ए काम करेगी 5 साल के बाद में भी जैसे वो यूजुअली फंक्शन करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. यहाँ पे हम लिख देते हैं probability A operating usefully. A operating usefully is equal to probability of A operating usefully will denote by small p is equal to. So how much is the probability? It is 1/4. अब वो काम करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो नहीं काम करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी ए नॉट ऑपरेटिंग यूजफुली. व्हाट विल बी दिस प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स? ए यूजफुली काम आएगी इसका 1/4 प्रोबेबिलिटी. ए यूजफुली काम नहीं आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? यस 3/4. तो इट विल बी 1 माइनस ऑपरेटिंग यूजफुली. सो इफ यू रिमेंबर Q इज द नोटेशन. Q इज 1 माइनस P. तो Q ऑफ A, Q करस्पॉन्डिंग टू A इज 1 माइनस 1/4. सो 3/4 चांसेस है, 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो काम नहीं करेगी. 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो काम करेगी, 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं करेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दो मशीन्स हैं इसीलिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, Q ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं.
अब आते हैं बी पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑपरेटिंग यूजफुली कितनी है? यूजुअल जैसे फंक्शन करती थी वैसे फंक्शन करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ऑपरेटिंग यूजफुली, व्हाट इज आंसर? Probability of B not operating usefully, yes, is 1 minus, this is P of B. P of B is 1 minus 1 upon 3 is cross multiplication, 3 into 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2 upon 3. तो ये रहेगा Q corresponding to B. Q is negation of whatever is given. काम करेगी 1/3, नहीं काम करेगी 2/3। तो चारों क्वांटिटीज हमने निकाल करके रेडी रखी है क्योंकि वो हमें आगे लगने वाली है। अब आते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है? बोथ मशीन्स विल बी परफॉर्मिंग एज यूजुअल फंक्शन। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी both A and B will operate usefully. अब मुझे आप बताइए, क्या A का ऑपरेट होना और B का ऑपरेट होना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? क्योंकि ये स्टेप लेने से पहले हमें ये तय करना जरूरी कि क्या वो एक दूसरे पे निर्भर करता है उनका अच्छे से काम करना या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज में आना है तो आप फ्रेंड से पूछोगे, तो फिर आप सोचोगे वो नहीं जा रही है तो मैं भी स्किप कर देती हूँ आज। तो वहां पे डिपेंडेंस होती है फ्रेंड्स के बीच में, कभी कभी होती है। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी है क्या? ए काम करेगा तो बी करेगा और बी नहीं करेगा तो ए भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ है क्या? व्हाट से, क्या लगता है आपको? नो, नहीं है। तो इनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स ले ले हम, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगा। दो इवेंट्स E1 एंड E2 दोनों का होना, ए ने भी ऑपरेट करना यूजफुली एंड बी ने भी ऑपरेट करना यूजफुली। तो क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, probability of E1 and E2 is probability of E1 into probability of E2. So probability that A operate usefully is P of A and probability that B operate usefully is P of B is equal to, ये select करेंगे हम, P of A is 1/4 and P of B is 1/3. 1/4 into 1/3 is 1/12. तो 12 में से एक चांस है कि दोनों भी मशीन्स अच्छी से जैसे पहले से काम करती थी वैसे करेगी। I hope we are done with this. There is one chance out of 12 कि वो दोनों भी मशीन्स 5 साल के बाद में वैसे ही काम करेगी जैसे वो पहले करती थी। आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है नीदर विल बी ऑपरेटिंग। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों भी 5 साल के बाद में काम नहीं करेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर और नाइदर विल बी ऑपरेटिंग, दोनों भी काम करना बंद कर देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो नेगेशन क्या है? QA QB, QA इंटू QB। दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका काम नहीं करना और उसका काम नहीं करना दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों के ना करने का प्रोडक्ट। पहली करेगी इसकी 1/4 है, नहीं करेगी इसकी 3/4 है। यहाँ पे Q ऑफ A जो हमने निकाल के रखा है, Q ऑफ A। दूसरी नहीं काम करेगी, इसका 2/3 है, तो इट इज 1/2।
तो दो में से एक चांस है कि दोनों भी काम नहीं करेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये यहाँ पर फर्स्ट बिट पे भी वो थ्योरम लगा है, सेकंड में भी वही थ्योरम लगा है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ओनली मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ओनली मशीन बी विल बी ऑपरेटिंग, केवल मशीन बी काम करेगी, इसकी संभावना या प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो केवल मशीन बी काम करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी बी डिनोट्स बी का काम करने का प्रोबेबिलिटी। केवल बी काम करेगी मतलब ए काम नहीं करने वाली, तो ए का नहीं करना क्यू ऑफ ए एंड बी का काम करना पी ऑफ बी, दोनों प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। ए का काम नहीं करना एंड बी का काम करना मतलब केवल बी ने काम करना, तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ए का काम नहीं करना और बी का काम करना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो उन दोनों की कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी Q ऑफ A इंटू P ऑफ B। Q ऑफ A इज 3/4, Q ऑफ A इज 3/4 एंड P ऑफ B इज 1/3। ये दिया है 1/4 इंटू 1/3। कितना है? जस्ट अ मिनट। Q ऑफ A इज 3/4। एक काम करेगा इसका 1/4 है, तो नहीं करेगा इसका 3/4 है, ऊपर से लिया हमने, फेच किया Q ऑफ A। Q ऑफ A 3/4 एंड P ऑफ B 1/3। 3/4 इंटू 1/3 कितना होगा? 1/4। तो 4 में से एक चांस है कि केवल बी काम करेगा, केवल बी वाली मशीन काम करेगी। तो चौथा पॉइंट, चौथा क्वेश्चन, एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन्स विल बी ऑपरेटिंग। कम से कम एक मशीन तो ऑपरेट करे, मतलब केवल ए भी करे तो चलेगा, केवल बी भी करे तो चलेगा, या दोनों भी काम करती है तो अति उत्तम। स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, अब दिखाई दे रही है? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, कम से कम एक मशीन तो काम करे। कम से कम एक मशीन काम करना नेगेशन है इसका, कोई भी मशीन काम नहीं करने का। तो कोई भी मशीन काम नहीं करेगी, ये पहले निकाल लेते हैं और फिर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कम से कम एक मशीन तो काम करेगी। तो इट इज प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन मशीन, वन ऑफ द मशीन्स, one of the machines will be operating। दोनों में से कोई एक तो काम करे कम से कम, इज इक्वल टू, जैसे कि घर में बोलते हैं मम्मी वो तो नहीं कर रहा है तू कर ले, या वो तो नहीं करेगी तू कर ले, ऐसे कम से कम कोई तो करे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना मामा कभी कभी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम ऑपरेट्स, नन ऑफ देम ऑपरेट्स। ये प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी है 1 में से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम ऑपरेट्स इज ए भी काम नहीं करना एंड बी भी काम नहीं करना। जहां पर दो इवेंट्स में एंड आ गया और वो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उनके प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होना इज लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोडक्ट ए का भी काम नहीं करना एंड बी का भी काम नहीं करना। क्यू ए कितना है?
QA 3/4, QB 2/3, 3/4 into 2/3, 3/4 into 2/3. It is 1 minus 1/2 is 1/2. So 50% चांसेस कि कम से कम एक मशीन तो भी काम करेगी. सो ये एग्जाम्पल क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अगला का एग्जाम्पल, shall I proceed further, dear students? Okay, fine. 3 groups. Next example, 3 groups of children contain respectively, 3 ग्रुप्स है, 3 गट, बच्चों के 3 ग्रुप्स है रिस्पेक्टिवली. पहले ग्रुप में 3 गर्ल्स एंड अ बॉय है. पहले ग्रुप में 3 गर्ल्स एंड अ बॉय. ये पहला ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप 1. इसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है, ठीक है, कॉमा 2 girls and 2 boys. So there is a semicolon. 2 girls and 2 boys. दूसरे ग्रुप में 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज है, ग्रुप 2. 1 girl and 3 boys. 1 girl and 3 boys. ये तीसरा ग्रुप है, ग्रुप 3. 1 लड़की और 3 लड़के ग्रुप 3 में है. तो ऐसे 3 ग्रुप्स हैं. 1 child is selected at random from each group. 1 child is selected at random from each group. हर ग्रुप में से एक चाइल्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है रैंडमली. Find the chance of selecting 1 girl and 2 boys. Find the chance of selecting 1 girl and 2 boys. अब 3 ग्रुप्स हैं, तीनों भी ग्रुप में से एक एक चाइल्ड को लिया जा रहा है रैंडमली. तो तीनों ग्रुप में से 3 लोग आने वाले हैं. तो कितने चांसेस है कि उसमें से 1 लड़की और 2 लड़के आएंगे? ये कॉम्बिनेशन कितने तरीके से मिल पाएगा ग्रुप्स में से? पहले ग्रुप में भी गर्ल है, दूसरे ग्रुप में भी गर्ल है और तीसरे ग्रुप में भी गर्ल है. पहले ग्रुप में भी बॉयज भी हैं, दूसरे में भी बॉयज हैं, तीसरे में भी बॉयज है. तीनों भी ग्रुप में गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज भी है. हम तीनों में से एक एक एट अ टाइम ऐसे ले रहे हैं और वो कॉम्बिनेशन 1 गर्ल और 2 बॉयज का हो. ऐसा कितने तरीके से पॉसिबल है? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. तो लेट अस परफॉर्म. There are 3 ways of selecting 1 girl and 2 boys. There are 3 ways of selecting 1 girl and 2 boys. हमें चाहिए 1 लड़की और 2 लड़के. तो इसको पाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? पहले ग्रुप में से लड़की का सिलेक्शन. पहले में का लिख दिया 1 गर्ल या केवल गर्ल. दूसरे में से 1 बॉय, तीसरे में से 1 बॉय. ये कॉम्बिनेशन है, गर्ल प्लस बॉय प्लस बॉय. दूसरा तरीका क्या है? पहले में से
बॉय, दूसरे में से गर्ल, तीसरे में से बॉय, बॉय गर्ल बॉय, ये तीसरा तरीका है, दूसरा। एंड द थर्ड वे इज अ बॉय एंड अनदर बॉय एंड गर्ल। मतलब पहले केस में हमने सपोज गर्ल पहले ग्रुप में से ले ली, दूसरे केस में हम दूसरे ग्रुप से ले रहे, तीसरे केस में हम तीसरे ग्रुप से ले रहे गर्ल। तो गर्ल्स तीनों ग्रुप से ली है हमने 1 by 1। ऑब्वियसली तीनों ग्रुप्स में गर्ल सर्कुलेट हो चुकी है, तो बाकी की पॉसिबिलिटीज सारी इसमें कवर हो चुकी है। इन तीनों केसेस के अलावा और कोई केस ऐसे लगता है आपको जिसमें कॉम्बिनेशन बनेगी एक लड़की और दो लड़कों की? यू कैन थिंक ओवर, एक लड़की और दो लड़के का 3 ग्रुप्स में से आपको लेना है, तो इससे अलग और कोई रास्ता है क्या? आप सोच सकते हैं ये 3 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, पहले इसमें से लड़की लेना या दूसरे इसमें से या तीसरे इसमें से, क्योंकि एक ही लड़की चाहिए इसीलिए। तो ये तरीके से हम एक लड़की और दो लड़कों को ले पाएंगे। तो फर्स्ट तरीके में गर्ल इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, from first group, boy from second and a boy from third, a boy from second and a boy from third. So फर्स्ट ग्रुप लड़की एंड सेकेंड ग्रुप में लड़का एंड थर्ड ग्रुप में लड़का, ये कितने तरीके से हो सकता है? तो ग्रुप 1 में से लड़की का चुनाव करना प्रभावित करता है क्या वहां से दूसरे ग्रुप से लड़की या लड़का चॉइस करने पर प्रभावित करता है क्या? नहीं करता है। नो डाउट एक ही लड़की और दो लड़कों का कॉम्बिनेशन करना है, बट वो इन एनी केस प्रभावित नहीं करता है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ selection of girl from first, boy from second and boy from third is equal to, पहले में से गर्ल को लेना कितने तरीके से पॉसिबल है? पहले ग्रुप में 3 गर्ल और 1 बॉय है, टोटल 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 लड़कियां हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 ये फेवरेबल आउटकम है क्योंकि तीनों लड़कियों में से कोई भी चल सकती है, और टोटल 4 बच्चे हैं, तो 3/4 is the probability of getting girl from first group, and एक लड़की एंड दूसरे ग्रुप का एक लड़का, सेकेंड ग्रुप में से बॉय मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स? टोटल 4 लोग हैं, तो स्मॉल n is 4 और 2 लड़के हैं, तो दोनों m is 2। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स, 2/4 प्रोबेबिलिटी है सेकेंड ग्रुप में से लड़के को लेने की। तो 3/4 of girl from first into and 1 boy from second, probability is 2/4, और तीसरे में से लड़का चॉइस करने की प्रोबेबिलिटी, तीसरे में 1 लड़की और 3 लड़के हैं, टोटल 4 लोग हैं, 4 में से लड़कों का चुनाव 3 तरीके से हो सकता है, 3/4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये पहले तरीके से एक गर्ल और 2 बॉय का चुनाव करने का तरीका प्रोबेबिलिटी कितना है? 9/32। Let us just highlight this by enclosing it in a circle. तो ये पहले तरीके से हो गया। दूसरे तरीके में हमने क्या किया,
पहले से एक बॉय लिया, दूसरे से गर्ल ली, और तीसरे से बॉय लिया। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉय प्लस गर्ल प्लस बॉय, पहले ग्रुप में से लड़के का चुनाव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 4 है, उसमें से बॉय एक ही है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स, m/n 1/4। दूसरे में से गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, सॉरी हाँ, गर्ल की प्रोबेबिलिटी 2/4 आएगी। टोटल 4 लोग हैं, उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो 2/4 प्रोबेबिलिटी है लड़की के आने की। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, नॉट एडिशन, बिकॉज इट इज एंड नॉट और रहेगा तो एडिशन, एंड रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ग्रुप में से लड़का आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ग्रुप 3, 1 गर्ल एंड 3 बॉयज, so 3/4। तो दूसरे तरीके से 1 गर्ल 2 बॉय का सिलेक्शन दूसरे तरीके से अगर हो तो वो कितने वेज से पॉसिबल है? 3/32। 4 into 4 is 16, 16 into 2 is 32 and 3 as it is 3/32. This is 9/32. 3 तरीके हैं, 2 तरीके पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में हम क्या कर रहे हैं? पहले इसमें से बॉय ले रहे हैं, दूसरे में से बॉय और तीसरे में से गर्ल ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉय एंड गर्ल इज इक्वल टू बॉय गर्ल। पहले ग्रुप में से बॉय आएगा, एक ही बॉय है, चारों में से एक, 1/4। And by this plus I don't mean that or वाला ऑपरेशन, ओके? You could rather write BBG। अगर प्लस आपको और लग रहा है तो आप उसको केवल BBG भी लिख सकते हैं। एक बॉय प्लस बॉय, एक लड़का एंड बाय दैट वे यू टेक इट। दूसरे में से लड़के का चुनाव कितने तरीके से हो सकता है? 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, डेफिनेटली 2 में से 2/4, 4 लोगों में से 2 लड़के हैं, तो 2/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है वहां से बॉय को चुनाव करने की। थर्ड में से गर्ल, एक ही लड़की है, 3 लड़के, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है वहां से लड़की का चुनाव करने की प्रोबेबिलिटी। इट इज हाउ मच? 1/32। तो 3 तरीके हैं, 3 ways of getting 1 girl and 2 boys। तो हमें कैसे भी चलेगा, पहले एक लड़की पहले में से ले लो, या दूसरे में से ले लो, या तीसरे में से ले लो, तो इन तीनों का एडिशन होगा। अब फाइनली हम क्या लिखेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी, दस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉयज from the 3 groups, from the 3 given groups is equal to, 3 तरीके हैं ना, तो this और this और this है ना। हम बोलेंगे ये वाले वे से, या वो वाले या वो वाले, this और this और this, और जहां पर और की बात आ गई वहां पर एडिशन होता है। तो पहले तरीके से 9/32 पॉसिबिलिटी थी, 9/32, 3/32। दूसरे तरीके से 9/3,
और तीसरे में 1/32, 9, 3 and 1. This probability plus this probability plus this probability is equals to जीवन इतने लेट क्यों आए हो आप? जीवन यू हैव टू आंसर लेटर. अटेंडेंस साठी आलंय का बेटा? तो यहां पे हो जाएगा एडिशन. तीनों केसेस को डील करते समय हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज किया. प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट था, लेकिन फाइनली हमको एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करना पड़ा. दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर बोथ द लॉज आर एम्प्लॉयड टू गेट द solution to the problem. So it is in total 9 plus 3 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 and the denominator is common 32. तो 32 में से 13 चांसेस है कि 3 लोगों का चुनाव रैंडमली अगर करते हैं, 3 लोगों का चुनाव रैंडमली करते हैं तो वो 32 तरीके से हो सकता है. उसमें से 13 तरीकों में एक लड़की और 2 लड़के होंगे. यस, शिवानी इज करेक्ट. 3 लोगों का चुनाव 32 तरीके हो सकता है जो ग्रुप्स दिए हैं उसमें, और उसमें से एक गर्ल और 2 बॉय आएंगे. ये 13 तरीके से पॉसिबल है. अगर ये एग्जाम्पल आप सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? शैल आई प्रोसीड फर्दर देन? डू यू लाइक सच एग्जाम्पल्स? You can apply this actually. Next example, the number of children in a family. तो ये सर्वे से रिलेटेड है. In a region are either 0, 1 और 2. किसी भाग में फैमिली के अंदर ये देखा गया है कि या तो कोई भी संतान नहीं है, या एक संतान है, या 2 बच्चे हैं. 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं. विथ प्रोबेबिलिटी तो 0 बच्चों का रहना, यानी उनके घर में बच्चे ही नहीं हैं. विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली. तो एक रीजन का सर्वे है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए. बच्चों का सर्वे है. किसी फैमिली, उस रीजन के किसी फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है. एक बच्चा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और 2 बच्चे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है. 2 से ज्यादा बच्चे उस रीजन में नहीं है. The probability of each child being a boy or girl is 0.5. The probability, आगे क्या डेटा है? The probability of each child being a boy or girl कोई चाइल्ड लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली हैज नो बॉय. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली हैज नो बॉय. ये डेटा दिया है, उसपे से ये ढूंढना है कि कोई फैमिली में लड़का ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. लड़का ना होना, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है.
शून्य बच्चा है किसी फैमिली में, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। एक बच्चा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। दो बच्चे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और उसमें आगे दिया है कि कोई बच्चा लड़का या लड़की है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। तो किसी फैमिली में कोई लड़का नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सॉल्यूशन, हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। 3 प्रकार की फैमिलीज है जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से। पहला क्या है कि उस फैमिली में कोई संतान ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 चाइल्ड। अब संतान ही नहीं मतलब बॉयज भी नहीं है, तो ये भी कवर उसमें हो गई। ये भी उसकी एक सब केस है ना, लड़का नहीं होना, जिनके घर में कोई संतान है ही नहीं, तो वहां पर लड़का भी नहीं है, तो ये भी उसमें आ ही जाती है बात। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो ये पहले प्रकार की फैमिली है जिसमें कोई संतान है ही नहीं, तो उसमें संतान ही नहीं है तो लड़का भी नहीं रहेगा, तो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरी टाइप की फैमिली क्या है? दूसरी टाइप की फैमिली कौन सी रहेगी? तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी घर में या तो कोई बच्चे ही नहीं है या एक बच्चा है, ये दूसरे टाइप की फैमिली। सपोज दूसरा टाइप की फैमिली जिसमें एक ही संतान है, तो या तो एक लड़का रहेगा या एक लड़की रह सकती है। दूसरे टाइप की फैमिली में ये 2 पॉसिबिलिटी है। वो फैमिली जिसमें केवल एक ही संतान है, या तो किसी को लड़का होगा या किसी की लड़की होगी। तो ऐसे फैमिलीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉय इज, ऐसी फैमिली में इज केस 2, ये सेकेंड केस है। ऐसी फैमिली में जिसमें एक संतान है, उसमें एक लड़का रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पहले तो एक संतान वाली फैमिलीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी, फैमिली में एक ही संतान है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 0.3 एक बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी फैमिली में, और वो एक बच्चा लड़का हो, तो यहाँ पर 50-50% चांसेस है, या तो 2 में से एक लड़का या लड़की, तो 0.5 चांसेस है लड़का होने के। सो इट इज 1.5, सॉरी 0.15। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि सेकेंड टाइप की फैमिली जिसमें एक ही संतान है, वैसी फैमिली कितने प्रतिशत है या कितनी चांसेस है वैसे फैमिली के? 0.3। तो उस 0.3 में भी एक ही लड़का हो, इसके 0.5 चांसेस है, हाफ है ना, 1/2, 2 में से एक है, या तो लड़का रहेगा या तो लड़की। 2 आउटकम्स में से सिर्फ लड़का रहने की एक ही पॉसिबिलिटी, तो 1/2 इज 0.5। टोटल आउटकम्स 2 है, या तो लड़का रहेगा या लड़की, और अगर लड़का है तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, m/n बेसिक इज 0.5। तो 0.3 टाइम्स 0.5 इज 0.15। तीसरे तरीके की फैमिली कौन सी है? जिसमें 2 संतान है। अब 2 संतान है तो उसमें कितने केसेस हो सकते हैं? 2 संतान, तो हो सकता है दोनों भी बेटियां ही हो सकता है एक बेटा और एक बेटी हो सकता है दोनों बेटे हो। तो ऐसे फैमिलीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉय, क्योंकि नो बॉय के लिए पूछा है ना, 0 बॉय इज केस 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉय in this case
इन दिस केस या केस 3 में इज इक्वल टू, अब पहले तो ऐसी फैमिलीज कितनी है जिनमें 2 ही बच्चे हैं, 0.5, तो 0.5 टाइम्स, अब एक लड़का ही ना हो, इसका चांसेस कितना है यहाँ पर, ये 3 आउटकम्स है पॉसिबल, 2 लड़का दो लड़का, कोई 2 लड़कियां, या फिर 2 लड़के, या फिर 1 लड़की 1 लड़का, तो एक भी लड़का नहीं होगा, ऐसे कितने चांसेस हैं, ये 1, 3 में से 1 है तो 1/3, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें से एक भी लड़का नहीं आएगा, ऐसा एक आउटकम है, तो 1/3, दिस इज 1 एंड दीज आर 3, तो 1/3, so it is 0.167 dear students, 0.5 into 1/3 is 0.167, तो ये सारे केसेस अलाउड है, हमको सारे केसेस को ध्यान करना, हमने कैटेगराइज किया फैमिली वाइज, एक फैमिली जिसमें कोई संतान नहीं, ऑब्वियसली उसमें लड़का नहीं रहेगा तो वो भी कंसिडर की, दूसरी फैमिली जिसमें एक संतान है वहां से भी निकाल ली, लड़का होगा इसकी चांसेस, तीसरी फैमिली जिसमें 2 लोग हैं उसमें से एक भी लड़का नहीं होगा, उसके भी चांसेस निकाल लिया है, अब करेंगे हम तीनों का एडिशन, 10 फाइनली एडिशन ही होगा, कंसिडरिंग ऑल 3 केसेस, तीनों भी केसेस को कंबाइन करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बॉय मीन्स नो बॉय इज इक्वल्स टू, पहले फैमिली में कितनी है प्रोबेबिलिटी, 0.2, दूसरे में 0.15, तीसरे में 0.167, तो उस रीजन में एक भी बॉय नहीं रहेगा किसी फैमिली में, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.517, तो 0.517 प्रोबेबिलिटी है कि लड़का नहीं होगा। इज दिस एग्जाम्पल क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हे पण आवडलंच असेल तुम्हाला एग्जाम्पल, आई होप। कुछ पूछना है तो इसमें क्या है, प्लानिंग जरूरी है, पूछा कैसे है और कैटेगराइजेशन कैसे करना है, फैमिली वाइज जाकर लड़का ना हो इसकी तीनों के लिए पॉसिबिलिटीज निकाल के तीनों को एडिशन किया, क्योंकि तीनों चलते हैं, ये भी चलेगा और ये, अंत में हमने एडिशन की, और उससे पहले हमने प्रोडक्ट लिया था। तो आगे की एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अ हस्बैंड एंड वाइफ, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू, तो दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, in the same post. सेम पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है और उसके लिए ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स सिलेक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स सिलेक्शन, हस्बैंड का सिलेक्शन होएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स सिलेक्शन इज 0.7, 7 जेंट्स में से वो एक है, तो 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है उसका सिलेक्शन होने की, एंड दैट ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन, वाइफ सेलेक्ट होगी इज 1/5, 5 में से वो एक लेडी होगी, इसलिए 1/5। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
तो पहले बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दोनों भी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, ओनली वन of them will be selected, and third, none of them will be selected. So let us execute one by one. पहले बिफोर गोइंग टू फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं क्या दिया है। देखिए, हस्बैंड का सिलेक्शन होगा, इसकी 1/7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इक्वल टू 1/7। तो इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की 1/7 चांसेस है, नहीं सेलेक्ट होने के कितने चांसेस रहेंगे? हस्बैंड्स नॉट सेलेक्टेड, मलकार किरण, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हस्बैंड्स नॉट सेलेक्टेड, हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड। Q ऑफ H, हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होना, Q ऑफ H से डिनोट कर रही हूं मैं, 1 माइनस हस्बैंड का सिलेक्शन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 into 1 is 7, 7 minus 1 is 6, 6/7। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी 6/7 पॉसिबिलिटी है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन, वाइफ का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ स्मॉल p ऑफ w से मैं डिनोट कर रही हूँ, ये दिया हुआ डेटा है। वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वाइफ नॉट सेलेक्टेड, वाइफ नॉट सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन, 1 माइनस 1/5 is 5 minus 1 is 4/5. This is Q of W. No selection of wife. तो चारों को हम ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। हस्बैंड का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, हस्बैंड का नई सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/7, 6/7, 1/5 एंड 4/5। और अब पहले पॉइंट के लिए जाते हैं। हाँ, पहला पॉइंट, बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। हस्बैंड, अब ऐसा है क्या कि हस्बैंड सेलेक्ट होगा तो वाइफ नहीं होगी, वाइफ होगा तो हस्बैंड नहीं होगा, ऐसा है क्या? दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो प्रोडक्ट आएगा हस्बैंड भी सेलेक्ट होना एंड वाइफ भी सेलेक्ट होना, PH into QH, PH into PW इज इक्वल टू दोनों का सिलेक्शन मतलब हस्बैंड का सिलेक्शन एंड वाइफ का सिलेक्शन, एंड में आ गया प्रोडक्ट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। हस्बैंड का प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ का 1/5 है, तो 1/35, तो 1/35 दोनों भी आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 35 में से एक चांस है। दूसरा क्या है पॉइंट? ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, ओनली वन सेलेक्टेड। अब ओनली वन सेलेक्टेड मतलब क्या? ओनली हस्बैंड नॉट वाइफ, हस्बैंड सेलेक्टेड, वाइफ नॉट सेलेक्टेड।
इसको ऐसे लिखते हैं, हस्बैंड सेलेक्टेड, वाइफ नॉट सेलेक्टेड, ये एक हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड बट वाइफ सेलेक्टेड, बट वाइफ इज सेलेक्टेड, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। कोई एक का सिलेक्शन हो जाना, मतलब हस्बैंड आना वाइफ नहीं आना, या वाइफ का सिलेक्शन हो जाना हस्बैंड नहीं होना, का नहीं होना, दोनों पॉसिबिलिटीज की एडिशन करनी पड़ेगी, दोनों प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, क्योंकि दोनों ये या ये केस में कोई एक सेलेक्ट हो ही रहा है। तो हस्बैंड सिलेक्शन 1/7 एंड वाइफ नॉट सिलेक्शन इज 4/5। हस्बैंड का सिलेक्शन होना 1/7, वाइफ का नहीं होना 4/5। ये हो गया पहले की प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट। अब दूसरे एडिशन, हस्बैंड नहीं सेलेक्ट होना, सिलेक्शन की 1/7 है तो नहीं सिलेक्शन की 6/7 रहेगी, और वाइफ का सेलेक्ट हो जाना, सिलेक्शन वाइफ के सिलेक्शन का 1/5 है। हस्बैंड सेलेक्ट होना एंड वाइफ नहीं सेलेक्ट होना, या फिर हस्बैंड नहीं सेलेक्ट होना और वाइफ सेलेक्ट होना। तो टोटल कितना आएगा ये 4/35 प्लस 6/35, सो इट इज 10/35। तो 35 में से 10 चांसेस है कि कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा, 7 में से 2 चांसेस है कि कोई दोनों में से एक तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी पहली वाली केस में, पहले वाले केस में दोनों भी आ जाए। यस, मुझे वहां से आंसर्स मिल रहे, चैतन्य ने भी लिखा है, गुड। तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, व्हाट इज इट, तीसरा इज बोथ, नहीं, वाइफ नॉट सेलेक्टेड। हाँ, वाइफ का सिलेक्शन नहीं होना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों में से किसी को भी नहीं, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, इसके चांसेस कितने हैं। तीसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, बोथ आर नॉट सेलेक्टेड। अन्य शब्दों में से ऐसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोथ आर नॉट सेलेक्टेड इज इक्वल टू हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होना Q(H) एंड वाइफ का सिलेक्शन नहीं होना Q(W), Q(H) इंटू Q(W). हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होने का चांसेस 6/7 है और वाइफ का नहीं सिलेक्शन होने का 4/5 है, तो 24/35। तो 35 में से 24 केसेस है जिसमें वो सेलेक्ट नहीं होंगे, दोनों भी सेलेक्ट नहीं होंगे। So this is all for today. Thank you for your patience listening. I hope you enjoyed today's session. If you have any questions, you can ask or put in the chat box and let us discuss.